Hello students, I am Suruchi Jain. I am your English language teacher. Today I'll explain the second poem of your textbook Flamingo. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender. See students, in this poem, the poet focuses on the theme of social injustice and inequalities. He presents the pathetic and miserable picture of the elementary classroom in a slum. These children have pale and lifeless faces. They are depressed and oppressed with burdens of life. Through the example of slum children, he attacks those who are exploiting the weaker sections of society. So now I'll start explaining the poem line by line. Students, I'll explain the poem in English as well as in Hindi for better understanding. And before I start explaining the poem line by line, I would like to tell you कि बच्चों ये जो poem है, इसका जो theme है वो social injustice और inequalities है. यहाँ पर जो पोएट है उसने स्लम, आप जानते हैं स्लम यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गंदी बस्तियाँ जो होती हैं, और वहाँ का जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ के बच्चों का एग्जाम्पल लिया है. एलिमेंट्री स्कूल वो होता है अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 13 आर टॉट. आप बोल सकते हैं जिसमें जैसे 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों का जो स्कूल होता है उसे एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं. अब ये जो पोएट है जो स्टीफन स्पेंडर, इन्होंने एक स्लम एरिया के एक एलिमेंट्री स्कूल और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जो उनका जो मोटिव है वो मोटिव है उन लोगों को हाईलाइट करना, उन लोगों पर अटैक करना जो कि वीकर सेक्शन, जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. सो द मेन थीम ऑफ द पोम इज सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी. नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट स्टैंजा. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow, the tall girl with her weight down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now, the poet here describes the pathetic and miserable condition of the elementary classroom in a slum. Now, here the poet says that the faces of the children studying in this school, in the slum school, are not like the usual children of schools. These children have pale and lifeless faces. Some are even deceased. They look weak and hungry. They are like rootless weeds which are uncared and unwanted. Their disorderly hair torn round their faces. The children of the slum are unwanted in society just as weeds are unwanted in a garden. A tall girl is sitting in the classroom. She looks very depressed. She is oppressed with the burdens of life and keeps her head down. The girl is apparently burdened with the miseries of poverty. The students there have stunted growth. Just like the girl who is oppressed with the burdens of life, there is a boy sitting in the classroom who is very thin. He is as thin as a paper. His eyes are big like those of a rat. One of the boys has inherited his father's disease and has stunted growth. Because of arthritis, he has stunted growth and his bones are twisted. And he is reciting his lesson from his desk. A sweet boy is sitting at the back of the dim classroom. He is sitting there unnoticed. He is dreaming, of a squirrel's game in the trees and probably other interesting things. He is lost in his dreams. Now here, the poet has described this, described the children, the students, those who are sitting in the classroom. अब यहाँ पर poet ने बच्चों को describe किया है, यानी वो जो elementary school में एक classroom का scene है, वहाँ पर कैसे बच्चे थे.
वहाँ के जो बच्चे थे वो माल न्यूट्रिशन थे, माल नरिश, यानी उनको ठीक से कहते हैं उनकी हालत जो थी वो बहुत ही पथेटिक, मिजरेबल, बहुत ही बुरी कंडीशन में जो थे वो बच्चे थे। और उसने ऐसे कुछ बच्चों को डिस्क्राइब भी किया है। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि वहाँ जो उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे थे वो यूजुअल जैसे स्कूल के क्लासरूम्स में जैसे आप जैसे बच्चे, उनकी तरह उनके फेसेस नहीं थे, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी दिख रही थी। और कुछ बच्चों को उन्होंने ऐसे ऐसे डिस्क्राइब भी किया है। वहाँ के जो बच्चे थे उनका जो फेस था वो पेल यानी पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि वो माल नरिश थे, और लाइफलेस जैसे उनके फेसेस लग रहे थे। कुछ तो बीमार भी थे, जिसमें एक आगे मैं आपको बताऊंगी कैसा एक बच्चे का एक डिस्क्रिप्शन भी है। वो बहुत ही वीक और कहते हैं ना कि भूख के मारे, क्योंकि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता था गरीबी के कारण, तो बहुत ही वीक थे और वो शक्ल से ही ऐसे हंग्री जो कहते हैं ना लुक्स थी उनकी। एंड दे आर लाइक रूटलेस वीड्स विच आर अनकेयर्ड एंड अनवांटेड। रूटलेस वीड्स यानी जो वीड्स निकाल देते हैं ना गार्डन में से निकाल करके फेंक देते हैं क्योंकि वो अनवांटेड होती हैं, तो ऐसे ही वो जो बच्चे थे वो सोसाइटी में अनवांटेड थे, उनकी अनकेयर्ड एंड अनवांटेड, यानी उनको कोई देखने वाला नहीं था और वो अनवांटेड है सोसाइटी के लिए। अ टॉल गर्ल सिटिंग इन द क्लासरूम। अब जो पोएट है वो एक गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक लंबी सी लड़की अपना सर झुकाए अपनी चेयर पर, अपनी बेंच पर बैठी है। वो बेचारी बहुत डिप्रेस लग रही है और शायद वो परेशान है अपनी पॉवर्टी से या जो भी उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं। शी इज़ अप्रेस्ड। अप्रेस्ड बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं उसको जैसे पीड़ित जिसे बोलते हैं। वो परेशान थी, बर्डन्स, अपने लाइफ के बर्डन्स के कारण वो परेशान थी और इस कारण वो अपना सर झुकाए बैठी थी। द स्टूडेंट्स देयर हैव स्टंटेड ग्रोथ, यानी वो फुली जो कहते हैं ना उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी जैसे कि यूजुअल बच्चों की होती है। Just like the girl who is oppressed with the burdens of life, there is a boy sitting in the classroom who is very thin. एक और लड़का भी बैठा है वहाँ पर जो कि बहुत पतला, और इतना पतला पेपर के जैसा पतला, इतना पतला। और एक बच्चे की आंखें कैसी हैं, रैट की तरह बड़ी बड़ी। And one of the boys has inherited his father's disease. वहाँ पर एक और बच्चा जिसकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, क्योंकि उसके फादर से, उसके अपने फादर से उसने जो है ये इनहेरिट की थी, यानी उसके फादर को ये बीमारी थी अर्थराइटिस की, बोन्स की बीमारी, जॉइंट्स की बीमारी। अब उस लड़के में भी अपनी फादर से वो आ गई थी और उसकी जो बोन्स थी वो ट्विस्टेड थी, यानी मुड़ी हुई जो थी उसकी बोन्स थी कुछ। और क्योंकि वो ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कुछ रिसाइट कर रहा था, वो अपनी बेंच पर बैठा बैठा ही वहाँ से कुछ रिसाइट कर रहा था एक लेसन। अ स्वीट बॉय इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम। क्यों डिम क्लासरूम बोला है, डल क्लासरूम बोला है, क्योंकि वहाँ पर शायद रोशनी भी पूरी नहीं थी और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ग्लूमी था, इसके लिए पोएट ने यहाँ पर उसको डिम क्लासरूम बोला है। एक बैक बेंच पे एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा भी बैठा हुआ था। वो अननोटिस्ड, वो बिल्कुल अननोटिस्ड बैठा हुआ था क्योंकि वो अपने सपनों में खोया हुआ था, यानी वहाँ के कुछ बच्चे भी सपने देख सकते थे और वो देख रहा था। वो बच्चा शायद उसका क्लास में उसका मन नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वो अपनी सपनों में खोया हुआ था। वो क्या सोच रहा था, वो स्क्विरल जो है पेड़ों के जो आसपास जो चक्कर काटती हैं और जो गेम खेलती हैं उनके बारे में सोच रहा था, या और भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स वो सोच रहा था और वो अपने सपनों में खोया हुआ था। नाउ आई विल स्टार्ट सेकेंड स्टैंजा। ऑन सार ग्रीन वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर हेड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its word. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with the fog, a narrow street sealed in with the lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Now, in this stanza, the poet describes the condition of the classroom. The walls are dirty and creamy, and on them are hung the donations given to the school in the form of pictures, paintings, Shakespeare's portrait, and maps which are meaningless for the children. The pictures of domes of big cities represent the quality of life in those cities. A picture of Tyrolese valley with beautiful flowers is also there on the wall.
The map on the wall shows, a world map is put up. The world map on the wall shows the children the beautiful world outside, but for these children of the slum it is meaningless. The pictures exhibit the world of the elite and privileged, while the children in the slum have a future that is confined to the slum. No, their future is bleak and dark. The donations on the walls only add to the frustration of the children. They are tempted to attain what would be unattainable for them. The children do not have the means to go and explore the world. For them, what they see through their classroom windows, the narrow street and the lead sky, is the world. Their world is painted with fog, the fog of hopelessness and poverty. The poet says that their world is far away from the actual world of rivers and capes. These things are like stars in the sky which they cannot touch. अभी इस स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है क्लासरूम के कंडीशन को. फर्स्ट जो स्टैंजा था उसमें बच्चों को एक्सप्लेन किया गया था कि वहाँ के बच्चे कैसे थे. अब ये क्लासरूम की बारी है. अब पोएट बताते हैं कि जो क्लासरूम जहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल का जो कि स्लम में है, उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो गंदी हैं और क्रीमी से कलर की हैं, और उन दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स टंगी हुई हैं. और पेंटिंग्स, पिक्चर्स, एक शेक्सपियर की भी एक पोर्ट्रेट यानी शेक्सपियर की भी एक जो है तस्वीर लगी हुई है वहाँ पर, और एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है. अब वो बोलते हैं कि शायद वो चीज़ें थी जो कि डोनेशन में जो दी जाती हैं, ऐसे स्कूल्स में जो डोनेशन के तौर पर मिली होंगी, तो वो उन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले में लगा रखी थी, वॉल्स पर टांगी हुई थी. लेकिन अब वो पोएट जो है वो बोल रहे हैं इन पिक्चर्स का उन बच्चों के लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है इन बच्चों के लिए. कैसे? जो वहाँ पर एक पिक्चर ऐसी लगी हुई थी जहाँ पर पिक्चर ऑफ डोम्स ऑफ बिग सिटीज़, वहाँ पर सुंदर से जो डोम्स जो थे वो वैसी थी पिक्चर थी, डोम्स की पिक्चर्स थी. अब वो बोलते हैं कि ऐसी जो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर वो भी थी टायरोलीस वैली की, विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स. वहाँ पर बहुत उस वाली जो पिक्चर में थे वैली में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी थे. लेकिन पोएट बोलते हैं कि ये जितनी भी पिक्चर्स थी वो एक एलीट क्लास यानी रिच जो कल्चर था, रिच पीपल की लाइफ को लेकर के एक रिच वर्ल्ड को शो कर रही थी. लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए तो सब कुछ ये मीनिंगलेस था, सब कुछ व्यर्थ था. उनके लिए उनकी दुनिया क्या थी? उनके लिए उनकी दुनिया वो क्लासरूम, और जब वो उस क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखते थे तो पतली संकरी गलियाँ और ऊपर जो है काले, जो कहते हैं ना लेड स्काई, काला सा धुंधला सा जो स्काई था, यही उनकी दुनिया थी. उनको शायद ये समझ, शेक्सपियर की पोर्ट्रेट का भी उनके लिए क्या मतलब था, वो क्या जाने कि कौन शेक्सपियर ने जो भी राइटिंग्स लिखी उनके लिए तो वो यूजलेस थी. उन्होंने कहाँ पढ़नी थी ये? उनके पास वो मीन्स नहीं थे, वो ज़रिया नहीं था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो बाहर जाकर के दुनिया को एक्सप्लोर करें, वहाँ पर क्या बाहरी दुनिया में हो रहा है वो उसको समझ सकें. उनके पास वो कुछ भी नहीं था. तो इसीलिए पोएट बोलते हैं कि ये जो डोनेशन है जो वॉल्स पर टंगी हुई थी पिक्चर्स और पेंटिंग्स के फॉर्म में, वो और कुछ नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही थी बच्चों में, क्योंकि वो उनके लिए वो ऐसा था, वो देख कर के कहते हैं ना वो एक टेम्पटिंग लगती थी, उन्हें बाहर की दुनिया को देखने का मन करता था. लेकिन उनके लिए तो वो था जो वो अनअटेनेबल था उनके लिए, क्योंकि वो बाहर जा कर के इन सबको अचीव नहीं कर सकते थे, उनका मज़ा नहीं ले सकते थे. अब आगे जो है वो पोएट बोल रहे हैं कि उनके लिए उनकी दुनिया, अगर वो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखे तो वही संकरी गली और जो है काला सा आसमान, धुंधला सा. अब वो बोलते हैं पोएट कि उनकी जो दुनिया है, जो स्लम चिल्ड्रन की, यानी जो उस स्कूल में उस क्लासरूम में पढ़ने वालों की, जो बच्चों की जो लाइफ थी, उनकी जो दुनिया थी, वो पेंटेड है किससे? फॉग से. फॉग भी कैसा? होपलेसनेस, पावर्टी, यानी उनकी जो पूरी दुनिया ही है, पूरी ज़िंदगी गरीबी और होपलेसनेस से भरी हुई है. और पोएट आगे बोलते हैं कि उनकी जो दुनिया है वो एक्चुअल जो वर्ल्ड है, जिसमें रिवर्स हैं, केव्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, बहुत सुंदरता है, वो उनकी दुनिया से बहुत अलग. उनके लिए तो वो दुनिया ऐसी थी मानो आसमान में तारे छूने के बराबर, जो कि वो कभी अटेन कर ही नहीं पाएंगे. नाउ थर्ड स्टैंजा. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night,
On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Now here, the poet says that Shakespeare is wicked for them. Why wicked for them? Shakespeare is wicked as he has written only about the rich and beautiful world, tempting them to steal. They'll never be able to learn the work of Shakespeare in the slum school. Now also, the map is of no interest to them because it does not reflect the world they live in, that is cramped and dark lanes, yani jo uncomfortable conditions they live in. And for them there is no world beyond their poverty, hunger and hopelessness. Their lives start in darkness, their life starts in darkness and ends in darkness. They are undernourished and their poverty has distorted their vision as they spend their whole time in foggy slums. They live in cramped holes like hutments and there is no end to their misery. They are very skinny and their bones are peeping out of their skin. That means they are so skinny that their bones, they seem to be, peeping out of their skin. They are so poor that the glasses, spectacles which these children are wearing are cracked and look like broken pieces of a bottle. Their life is destroyed. The poet says that the slum is like a blot, is like a blot, is like a spot as big as doom in the lives of these children. And what does this doom means? Doom means destruction. अब पोएट यहाँ पर बताते हैं, बोल रहे हैं कि शेक्सपियर तो उनके लिए विकेट है. विकेट क्यों? शेक्सपियर उनको क्यों नहीं, उनके लिए विकेट क्यों है? क्योंकि शेक्सपियर ने आज तक जो भी लिखा वो रिच और ब्यूटीफुल, मेनली मेजरली उन्होंने रिच और ब्यूटीफुल वर्ल्ड शो किया है अपने लिसनर्स, अपने रीडर्स के सामने. तो बोलते हैं अब इन बच्चों के लिए वो किस काम का? उनके लिए वो तो शायद शेक्सपियर के बारे में पढ़ ही नहीं पाएंगे. शेक्सपियर ने जो भी लिखे, शेक्सपियर के जो वर्क है वो उनको सीख ही नहीं पाएंगे, लर्न ही नहीं कर पाएंगे स्लम स्कूल में. अब आगे पोएट बोलते हैं कि जो मैप है, जो वर्ल्ड मैप भी जो वहाँ पर डिस्प्लेड है वॉल पर, वो भी उनके किस काम का? क्योंकि वो तो वो दुनिया है ही नहीं ना जहाँ पर जैसी दुनिया में ये रहते हैं, है ना, जहाँ पर सब कुछ अनकम्फर्टेबल है, डार्क लेन्स हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, धुंधला आसमान है. तो उनकी दुनिया और जो पिक्चर जो वहाँ पर लगी हैं उन दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. वो उनकी दुनिया नहीं थी. फॉर देम देयर इज़ नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी. यानी उनकी जो दुनिया थी वो वहीं पर ही सिमट करके रह गई थी. अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी, अपनी भूख, अपनी होपलेसनेस के आगे तो उनकी और कोई दुनिया थी ही नहीं. उनकी जो लाइफ है वो डार्कनेस यानी अंधकार से शुरू होकर अंधकार में ही ख़त्म हो जाती है. दे आर अंडर नरिश्ड. और कहते हैं ना, उनको पूरा खाना नहीं मिलता था, इसलिए उनको तरह तरह की और भी तरीके की बीमारियां भी थीं जो कि अंडर नरिशमेंट के कारण हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था, नरिशमेंट पूरी नहीं मिलती थी, है ना वहाँ पर. और देयर पॉवर्टी हैज़ डिस्टॉर्टेड देयर विजन. यानी उनकी जो गरीबी थी उन्होंने उनके सोचने समझने, यानी जो उनका जो फ्यूचर जिसे कह सकते हैं, या उनकी देखने का जो नज़रिया था उसे भी धुंधला कर दिया था. क्योंकि वो कहाँ पर रहते थे? वो एक छोटे छोटे, कहते हैं ना, छोटे छोटे जैसे हट जैसे घरों में जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ पर रहते थे. उनकी जो सफरिंग्स थी, उनकी मिजरी का कोई एंड ही नहीं था. इसीलिए उनकी सोच भी उसी तक ही सीमित, उसी कहते हैं ना, उसी डार्कनेस तक ही सीमित होकर के रह गई थी. वो उस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो कुछ आगे की सोच सके. दे आर वेरी स्किनी. वो इतने, कहते हैं ना, क्योंकि उन्हें खाना पूरा नहीं मिलता था, वो इतने माल न्यूट्रिशन थे और माल नरिश्ड थे कि इतने पतले, इतने स्किनी कि जैसे कहते हैं ना कि उनकी जो स्किन थी उसके बाहर से ही आदमी हिसाब लगा ले कि उनकी हड्डियां तक झांकती थी उनकी स्किन से बाहर. इतने मतलब वो पतले, सूखे हुए एकदम. और पोएट आगे बताते हैं कि वो लोग, वहाँ के जो बच्चे थे, वो इतने, उनकी गरीबी का मतलब इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इतने गरीब थे क्योंकि जो उन्होंने स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मे उन्होंने पहने हुए थे, उनके ग्लासेस ऐसे ब्रोकन ग्लासेस थे, जैसे कि ब्रोकन बॉटल के जो ग्लासेस हैं, यानी उनके फ्रेम, उनके शीशे ऐसे जो थे वो ब्रोकन उसमें थे. And their life is destroyed. The poet says that the slum is like a blot, a spot
as big as doom in the lives of these children. यानी इन जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने बैठे हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी लाइफ में जो ये स्लम यानी ये जो उनका जो एक कंडीशन थी, वो एक बहुत बड़ा धब्बा, बहुत बड़ा दाग था उन बच्चों की ज़िंदगी में. Students, now I'll explain fourth stanza of this poem. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history theirs, whose language is the sun. Now students, first of all I would like to tell you the meaning of catacombs. Catacombs are graves. बोलते हैं ना, an underground burial place से बोलते हैं, वो catacombs उसका वो है meaning. Now I'll explain the lines. Now here, in these lines the poet feels that the map which shows beautiful and exotic places should be replaced with slums, as it is not the world they live in. He says that unless the government officials like governor, inspector or visitors, those who visit that school, play a vital role in bringing about a change and come forward to help them, their lives will remain in dark. Their lives will remain the same as they are living now. The slum children will be able to peep through the window. That is, they'll be able to look at outer world only when the gap between the two worlds is bridged. The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. They should break the barriers till they come out of the dirty surroundings, and their world should be extended into the green fields, golden sands and bright world. They should have the freedom of expression and their outlook should be broadened. They should make progress. They should be allowed to have quality education. And also the poet says that only the educated and learned people can create history whose language has strength and power. See students, though the poet has taken the example of slum children, he's talking about weaker section of the society as a whole. He has pointed out at the injustice and inequalities faced by them. So इधर अभी फोर्थ स्टैंजा में पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि जब तक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, जो भी वहाँ पर आते हैं विज़िट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, उनका कहते हैं ना, वो अपना जो रोल है, जो एक सिग्निफिकेंट, जो एक वाइटल रोल है, वो प्ले नहीं करेंगे तब तक उनकी लाइफ, जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनकी लाइफ वैसे ही अंधकार में रहेगी, उनकी लाइफ रहेगी जैसे कि अब उनकी है. तो ये जो सिविलाइज्ड जो लोग हैं, इनको आगे आना पड़ेगा. उनको जो ये ब्रिज है, ब्रिज कैसा, जो कि इलीट क्लास यानी सिविलाइज्ड लोगों के जो वर्ल्ड है, जो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल है, जो उनका तौर तरीके हैं, जैसी उनकी लाइफ है, और ये जो स्लम में रहने वाले लोगों की या उन बच्चों की जो लाइफ है, जब तक वो जो बीच में जो ब्रिज है उसको गैप नहीं किया जाएगा, यानी इन दोनों वर्ल्ड्स को मिलाया नहीं जाएगा, तब तक उनकी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है डार्कनेस में. जब ऐसा हो जाएगा, जब ये लोग अपना जो कहते हैं ना रोल, अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफ़िल कर लेंगे, तभी ये जो बच्चे हैं जो स्लम में रहने वाले, वो बाहरी दुनिया को देख सकेंगे, तब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. They should break the barriers till they come out of the dirty surroundings. यानी कहते हैं ना, उनको ये बैरियर है जो उनकी दुनिया और सिविलाइज लोगों की दुनिया और स्लम में रहने वाले लोगों की जो दुनिया में जो बैरियर है, उनको वो गिराना होगा तब तक जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाए. स्लम के जो बच्चे हैं, स्लम में रहने वाले यानी जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो अपनी डर्टी सराउंडिंग से, अपनी उस ग्लूमी
दुनिया से, अपनी लाइफ से बाहर आकर के उनके लिए भी कहते हैं ना, उनको भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो ग्रीन फील्ड्स में निकल सके, एंजॉय कर सके, गोल्डन सैंड पर चल सके और उनकी दुनिया बिल्कुल एकदम ब्राइट हो. They should have the freedom of expression and their outlook should be broadened. यानी उनको पूरी इतनी आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, उसको और गहरा करना और ब्रॉड करना है. दे शुड मेक प्रोग्रेस, ताकि वो आगे तरक्की कर सके. उनको तरक्की करनी चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू हैव क्वालिटी एजुकेशन. उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पोएट बोलते हैं कि जो हिस्ट्री आज तक किन लोगों ने क्रिएट की है, उन्हीं लोगों ने आज तक हिस्ट्री क्रिएट की है जिनके पास नॉलेज थी, जिनकी लैंग्वेज में, जिनके शब्दों में कहते हैं ना ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, पावर थी, जिनकी सोच में उनके पास नॉलेज थी, उन्हीं लोगों ने हिस्ट्री आज तक क्रिएट की है. तो इन ऐसे जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए. तो दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस पोम. I hope you would have understood this poem well. So thank you students for listening.